एसोसिएशन ऑफ थाने, भिवंडी टैक्स एसोसिएशन, टैक्स फ्रेंड्स मुंबई, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी, एंड प्रयागराज. LLB, FCA, ACMA, MFM, MBA Finance, PGDFM, MF. We have missed him, so I would not like. Yeah, very sorry for the break. I think you can start once Kamlesh is back. Kamlesh, I think, has some network problem. So I request Rakesh to kindly take it over from here. Rakesh Agarwal. राकेश अग्रवाल सर 2 मिनट सर, मेरे को 1 हो मिनट गया चल स्टार्ट कर. 2 मिनट सर, वो मेरे पास ओपन करना है. 1 मिनट 1 सेकंड सर, 2 सेकंड. नेट कनेक्शन प्रॉब्लम. 2 सेकंड सर. ओपन हो रहा है मेरा. Welcome to all of you. Welcome Jayesh Cheria sir. Thank you sir for accepting our request, and you are here with us. Friends, CA Jayesh Cheria sir is a BCom, LLB, FCA, ACMA, MFM, MBA Finance, PGDBFM, MFC, MBKM, MPhil, DBM, MA, MCom, ESA, MBA, ADBA, PGDBM, PGDBIB, MGEM, DIM, PGDB Marketing, PGD in Advertisement, PGD in WM, AMP, ADMA London. Studied Advanced Management at Italy, German, UK, US, China. Awarded by the President of India for getting first in India in research. Also awarded by Chief Minister of Gujarat for Science and Research. Awarded by Governor of Gujarat as Legend of Surat, by Health Minister of Gujarat as Star of Surat, by Member of Parliament Surat as Jewel in the Crown, by Mayor of Surat as Surat Na Sitara, as Youth Icon, by leading newspaper group Dainik Bhaskar. State level winner in painting, singing, elocution, drama, etc. Acted in few Gujarati dramas and films. Participated in Akshay Kumar International Martial Arts Competition at Mumbai. Member of Civil Defence Government of Gujarat. Selected for World Youth Peace Summit, Geneva. Represented India at various forums of higher education at Los Angeles, Milan, Phuket, Paris, etc. Elected as the President of Rotary Club 2008. Associated with ICA activities from 1995. Elected as Chairman of Surat Branch 2005. Elected as Vice Chairman WRC 2012. Currently a Central Council member, Chairman of Professional Development Committee, Vice Chairman of Peer Review Board, Member of Accounting Standard Board, Editorial Board, and 14 other committees of ICA. Member of various committees of South Asian Federation of Accountants. Friends, it will never ending. It will go on. We are having with us a multi-talented personality with us. Now I request CA Jayesh Cheria sir to please take the charge of this session. Thank you. Thank you very much, Rakesh ji. Okay. सर जो होस्ट है वो बाकी सबको म्यूट कर सकते हैं. सर सब म्यूट में है, अभी सबकी वीडियो भी बंद हो गई. अच्छा, what will actually happen, sir? Every now and then some people will keep on adding. No, nobody will be able to unmute. Don't worry, it is a lock. So, please continue, Jay bhai. Okay, done. Fine. So, a very good morning to all of you. And maybe the message that is coming up is, if you have some technical issues on Zoom, anything on YouTube,
live session is going on, there the quality would be much better, so that यहाँ पे थोड़ा Zoom के ऊपर प्रेशर कम हो जाए और आप दोनों ही अच्छी तरह से देख सके. Friends, first of all, let me thank all these organizations to provide me with this opportunity, this wonderful opportunity. I hope that I am audible. मुझे actually ये नहीं पता चल रहा है कि whether I am audible or not. Chat में या कोई अगर yes no सिर्फ लिख दे, so I can make out that I am audible first of all. Okay, fine. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thanks once again to all the 5 organizations. Thanks very much to Rakesh as well as Kamlesh for giving such a wonderful introduction. And friends, you know, during this particular month, in the last 1 month, a number of webinars have started. Number of webinars. I think at the same time, there are so many webinars. These days, people are not very clear that, you know, which webinar to go. मतलब दिन में ऐसा होता है कि शाम को 5 बजे के मैसेज देखे तो एक वेबिनार पुणे में हो रहा है और वो जीएसटी पे हो रहा है, एक वेबिनार इंदौर में हो रहा है और वो इनकम टैक्स पे हो रहा है, एक वेबिनार मुंबई में हो रहा है और वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे हो रहा है. मतलब इतने सारे वेबिनार्स अभी हो रहे हैं पिछले 1 महीने में कि पता ही नहीं चलता बोले क्या वेबिनार में जाऊं और क्या नहीं जाऊं. सो व्हाट आई डिड वाज I observed that nearly 95 to 99% of the webinars, 95 to 99% of webinars are on the technical skills. मतलब जीएसटी पे हो रहा है, फॉरेंसिक पे हो रहा है, इंड एस या आईएफआरएस के ऊपर हो रहा है. So, you know, there are many such technical topics covered. तो मैं ये देख रहा हूं कि when all these technical topics are being covered, along with that, हमें एक अलग माहौल का भी, अलग टॉपिक्स भी करना चाहिए. Friends, you know, these days, see, there are 5 different organizations joined here, but I basically belong to the Institute of Chartered Accountants of India, which is being led by a very able leader. हमारे जो भी प्रेसिडेंट है, C. अतुल गुप्ता, he is very marvelous, very sincere, very visionary. तो उन्होंने इस विजन के साथ हमारा एक बोर्ड ऑफ स्टडीज करके होता है. बोर्ड ऑफ स्टडीज इज फॉर स्टूडेंट्स. जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज बोर्ड ऑफ स्टडीज करती है. तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बट हम थोड़े वन साइडेड एक्टिविटीज कर रहे थे, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के 2 हिस्से कर दिए, बीओएस एकेडमिक्स एंड बीओएस स्किल्स. फ्रेंड्स, हमें समझना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, along with the right aptitude you require right attitude to determine or to reach higher altitudes. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि you require aptitude also and you require attitude also. जब हम वेबिनार्स में जाते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ पे, तो ये अपना एप्टीट्यूड डेवलप करता है. एप्टीट्यूड along with that attitude is important. इसीलिए हमें वेबिनार्स चाहिए. मैं ज्यादातर जो देख रहा हूं ये मतलब जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, they are into income tax or they are into law or they are into chartered accountancy. तो फ्रेंड्स, हम क्या हो रहा है कि we are learning law, income tax day in day out, and that is essential. That is where our domain expertise is. But along with that, what we should learn is management, soft skills, presentability, you know, vision, strategy, और उसके साथ साथ लाइफ की जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए. इफ वी बैलेंस दिस एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, तो नेचुरली हमारा पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ और अच्छी तरह से हो सकता है. सो व्हेन राकेश वाज डिस्कसिंग विद मी कि सर आपको आना है, आई सेड वेल एंड गुड, यू जस्ट चूज द टाइम एंड द डेट, इफ इट इज अवेलेबल आई विल श्योरली कम. एंड देन वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक्स. तो टॉपिक के वक्त फिर टॉपिक डिस्कस करते करते ये ध्यान आया कि जो लॉकडाउन सिचुएशन है ना, उसमें मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जी रहे. आई एम श्योर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दे आर द प्रोफेशनल्स, एंड आई एम श्योर वो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी रहे हैं. बट ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन में बोर हो चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन में परेशान हो चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको लॉकडाउन में डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ रही है, और ऐसे कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कब लॉकडाउन खुले और बाहर निकले, डेस्परेट हो चुके. फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंसेस पे आपका और मेरा
सरकमस्टेंसेस पे आपका और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन सरकमस्टेंसेस में हम डील कैसे करते हैं अपने आप के साथ, उस पे आपका और मेरा 100% कंट्रोल है। और इसी चीज को, इसी थीम को दिमाग में रख के हमने एक टॉपिक डिसाइड किया, लॉकडाउन इज अ न्यू डॉन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझे हम, लॉकडाउन इज अ न्यू डॉन। मतलब इसको यूं कहते हैं कि द डार्केस्ट आवर इज बिफोर द डॉन। जब सुबह होने वाली है उससे पहले ही अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हमको लगने लगा है कि पिछले 1 महीने से हम लॉकडाउन में हैं, इकोनॉमी नीचे की ओर जा रही है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब अंधेरा बढ़ा हुआ है। और अंधेरा जब बढ़ा हुआ है तो जरूर इसका मतलब सुबह होने का समय है। सो यू नो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। फ्रेंड्स, भरोसा रखिए, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। ये हमको बहुत नई नई चीज सिखा के जाएगा। इट्स अ न्यू डॉन। और अगर हम इसको यूं कहें, इंग्लिश में किसी ने कहा है, इफ द ऑटम इज देयर, इफ द ऑटम इज देयर, इज द स्प्रिंग फार बिहाइंड। भाई, जहां पतझड़ होंगी वहीं बहारें भी होंगी। लेट अस अंडरस्टैंड। और इसी को किसी ने हिंदी में बेहतरीन तरह से कहा है कि रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। और फ्रेंड्स, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनल लोग जो है ना, वो अपने सब्जेक्ट के भी मास्टर होने चाहिए। बराबर मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोफेशनल्स जो है ना, वो अपने सब्जेक्ट के भी मास्टर होने चाहिए और अपने दिमाग पे जो कंट्रोल होता है ना, उसमें भी मास्टर होने चाहिए। राइट? वी रिक्वायर अ वंडरफुल एप्टीट्यूड एंड एट द सेम टाइम वंडरफुल एटीट्यूड। तो ये जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मैं एकदम लाइटर वेन में आपसे एक शुरू कर रहा हूं ये चीज, एकदम फ्रेंडली इस तरह से। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पहले एक शेयर करता हूं, एक छोटी सी स्टोरी एक अनफॉर्चुनेट बॉय की। देयर वाज एन अनफॉर्चुनेट बॉय, एक बदनसीब बच्चा। ये बच्चे के साथ क्या हुआ भाई, थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। राइट? उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसको पसंद थी और गर्लफ्रेंड को वो पसंद था। दोनों को एक दूसरे पसंद थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई। क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? अब मैं हीर रांझा और लैला मजनू की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, बट मैं इस बात एक एग्जाम्पल से मैं इस सिचुएशन को, लॉकडाउन की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहता हूं। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं, जो एक शहर में पैदा हुआ और वो शहर में वो रह नहीं पाता है। मजबूरी में उसको उस शहर, उस राज्य से निकल के किसी और शहर, किसी और राज्य में आना पड़ रहा है। राइट? मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं दूसरों के झगड़े में उसको खुद इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और अपना भी नुकसान करवाना पड़ रहा है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाया, किसी और के साथ रहना पड़ा। क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते, हम बात समझते किसकी बात कर रहे हो। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन में पैदा हुआ था। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन में पैदा हुआ था। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं कृष्ण की। मैं बात कर रहा हूं कृष्ण की। अनफॉर्चुनेट तो मैंने ऐसे ही वर्ड यूज किया था। राइट? कृष्ण जैसे व्यक्ति तो फॉर्चुनेट होते हैं और हम उनकी बात कर रहे हैं, हम भी फॉर्चुनेट है। तो कृष्ण की बात करें, पैदा कहां हुए? लॉकडाउन में पैदा हुए। लॉकडाउन में अपने पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं थे, किसी और के साथ थे। ऑफ कोर्स दे वर वंडरफुल कपल। राइट? और उनकी लाइफ आप देखिए, आप कहां, आप यूपी में थे और वहां कहां से आपको गुजरात में द्वारका शिफ्ट होना पड़े, मथुरा, वृंदावन से लेके द्वारका, बट कभी उफ तो नहीं किया। तो लॉकडाउन की बात करें, और मैं आपको इसको एक बहुत ब्यूटीफुल तरह से जोड़ना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से समझे। कृष्ण का जन्म जो है उसके साथ कहा जाता है कि काल कोठरी में हुआ था, अंधेरा था, काल कोठरी का था। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दरवाजा खुल गया, काल कोठरी का दरवाजा खुल गया। और बहुत ही तूफानी रात थी, और तूफानी रात में नदी में जैसे बाढ़ आई हुई थी। और जब कृष्ण का जन्म हुआ, दरवाजा खुल गया, नदी ने रास्ता दे दिया और कृष्ण सामने चले गए। आपने ये जरूर सुना होगा। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका अगर आप मतलब निकालोगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और कृष्ण हमको ये कह रहे हैं, और वो ये है, वो जो अंधेरी काल कोठरी है ना, वो हमारा मन है।
वो हमारा मन है, जिस मन में हमने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स कई बार डाले रखे होते हैं। अरे ये लॉकडाउन में क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करूंगा, पता नहीं यार मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा, मेरी इनकम का क्या होगा, अरे इसका, देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स वी कीप ऑन हैविंग अननेसेसरी इन माइंड। ये जो अंधेरा है ना, वो हमने अपने मन में खुद क्रिएट किया हुआ है। और जब इसी मन में कॉन्शियसनेस पैदा होती है, कृष्ण का एक्चुअल मतलब है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो जब इसी मन में कॉन्शियसनेस पैदा होती है तो खुद ब खुद वो जो अंधेरा है वो हट जाता है। आपका जो मन में वो लॉकडाउन जो है ना, लॉकडाउन वो फिजिकल होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन फिजिकल होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, आपका मन जो है वो खुल जाता है। जब कॉन्शियसनेस आ जाती है आपका मन खुल जाता है। और जो इतने तूफान है मन में, जिंदगी में इतने तूफान है, जो इतने सारे थॉट्स की बाढ़ आ रही है, वो खुद ब खुद कॉन्शियसनेस बढ़ने पे रास्ता दे देती है आपको। अपनी जिंदगी में वो खुशी को रास्ता मिल जाता है। एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ कृष्ण। तो जो लॉकडाउन में पैदा हुए, उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। आप और मैं अगर थोड़े दिन लॉकडाउन में है तो हम कैसे परेशान हो सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और इसी लॉकडाउन की बात करें तो 29 years जितनी टाइम, almost for 29 years, one gentleman was locked down in South Africa, and his statue is there in Pretoria, in Johannesburg, and that gentleman is known as Nelson Mandela. 29 years, right? ऐसे ही कोई नहीं बन जाता नेल्सन मंडेला. He had gone through such a lockdown. Similar might be the case of मोहनदास करमचंद गांधी, right? जिन्होंने ये किया. अच्छा, इससे आपको एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं मेरी बात को समझाने के लिए. फ्रेंड्स, आजकल जो है ना, हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं कि वी सपोर्ट पुलिस, वी सपोर्ट डॉक्टर, वी डू दिस, वी डू दैट. आई थिंक इट इज गुड. मैं भी सपोर्ट करता हूं, आप भी सपोर्ट करते हैं. हम में से हर एक जन, मुझे लगता है इंडिया का और दुनिया का हर अक्लमंद आदमी जिसका दिमाग ठिकाने है, जो वाइज है, वो जरूर डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, पुलिस को, प्रशासन को, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको थैंक्स कहेगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बट अभी बाढ़ आ चुकी है, अभी बाढ़ आ चुकी है वीडियोस की. हर आदमी वीडियोस बना रहा है, राइट, उसके ऊपर. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूंगा, जब हम ये बना रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको ध्यान से सुनना. इन इंडिया वी हैव सम प्लेस कॉल्ड सियाचिन. You have a place called Siachen Glacier, and that is at the height of 23,000 feet. 23,000 फीट की हाइट पे सियाचिन ग्लेशियर है. फ्रेंड्स, आपको ये जान के खुशी होगी, शायद आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ना भी पता हो, कि इस दुनिया के जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड के मोटरेबल रोड्स है, द हाईएस्ट अल्टीट्यूड मोटरेबल रोड्स, फर्स्ट 3, दे ऑल आर इन इंडिया. ये तीन इंडिया में है. The first one is Khardungla, 18,600. The second is Tanglangla, and third one is Changla. ये तीन पास इंडिया में है, राइट. अब मैं आपको जो इसका रेफरेंस देना चाहता हूं, ये समझिए आप. जब आप खारडुंगला पे जाते हैं, नॉर्मली मेनी पीपल गो विद द बुलेट. मैं भी चंडीगढ़ से बुलेट लेता हूं और वो बुलेट लेके कारगिल की तरफ चला जाता हूं. तो खारडुंगला इज द प्लेस 18,600 फीट पे. वहां पे बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है और वहां पे ये रखा है कि प्लीज डू नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 10 मिनट्स. क्योंकि एक साधारण आदमी 10 मिनट से ज्यादा अगर वो 18,600 फुट की हाइट पे रोकेगा तो देयर आर चांसेस ही में फेंट, बेहोश होने के चांस है. ये 18,600 खारडुंगला. आप में से कई लोग मनाली गए होंगे, और मनाली में सोलांग वैली जब जाते हैं तो आपने टूरिस्ट लोगों को देखा होगा, थोड़ा थोड़ा बर्फ होता है, वो गमबुट और कोट पहन के निकलते हैं. फ्रेंड्स, मनाली इज ओनली 5,400 फीट. मनाली रफली 5,500 फीट के आसपास है, बस. ओनली 5,500. उसका डबल 11,000 पे लेह है. लेह से ऊपर आप जाएंगे तो ये खारडुंगला है, और उससे ऊपर है कारगिल, एंड ऊपर जाएंगे तो सियाचिन 23,000 फीट. सर, 23,000 फीट पे आप इंडियन आर्मी को देखो. आप एक काम करना, ये सेशन खत्म होने के बाद गूगल इमेजेस में जाइए और गूगल इमेजेस पे डालिए इंडियन आर्मी इन सियाचिन. तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आएंगे जिसमें व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में हमारे इंडिया की आर्मी आपको मिलेगी सियाचिन ग्लेशियर्स. फ्रेंड्स, आपको पता है इनकी पोजीशन क्या है? एवरी ईयर, मेरे वर्ड्स को नोट करना, एवरी ईयर फॉर 6 to 8 months ये लॉकडाउन कंडीशन में जीते. एवरी ईयर फॉर 6 to 8 months ये लॉकडाउन कंडीशन में जीते. मैं कई बार
मतलब हिमालयस मुझे बहुत पसंद है, एवरी अल्टरनेट ईयर आई गो टू हिमालयस और वहां के लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो इंटरेक्शन करते करते लद्दाख के कई लोगों ने मुझे ये बताया कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये साल में 3 या 4 महीने ऐसे होते हैं जब आप सियाचिन ग्लेशियर तक जा सकते हैं, सिर्फ 3 या 4 महीने। कारगिल और ये जो सियाचिन की जो चोटियां हैं 3 से 4, 7 से 8 महीने बर्फ से ढकी रहती है, प्योरली व्हाइट। इट इज नॉट पॉसिबल टू गो देयर। रोड्स तो जा ही नहीं सकते, रोड्स तो जा ही नहीं सकते इवन फॉर मंथ्स टुगेदर बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। हेलीकॉप्टर्स भी नहीं जा सकते। तो आप इंडियन आर्मी के बारे में सोचिए, जो 6 महीने कई बार और कई बार 8 महीने लॉकडाउन कंडीशन में रहते हैं। कितनी बार लाइफ में, आप और मैं तो एक ही बार लाइफ में ये कर रहे हैं, और ये लोग कर रहे हैं हर साल, एवरी ईयर 6 to 8 months they are in lockdown condition and I have been told। मुझे लद्दाख के कुछ नौजवान लोगों ने ये बताया था कि वहां 23,000 फीट पे ऐसी कंडीशंस है कि ना तो आप ठीक से खाना पका सकते हैं। हम तो ऐसे नखरे कर रहे लॉकडाउन में, ऐसे नखरे कर रहे, घर पे बैठे हैं, पानी आ रहा है आराम से, खाना मिल रहा है आराम से, और ऐसे नखरे कर रहे हैं। और वो लोग वहां खाना पकाने की कैपेसिटी नहीं है सर, नेगेटिव टेम्परेचर्स, आग ठीक से नहीं जलेगी, खाना ठीक से नहीं पकेगा, ये कंडीशन में जीना। नहाने की मुश्किल सर, आप महीनों तक नहा नहीं सकते, नेगेटिव टेम्परेचर में नहा नहीं सकते, ये कंडीशन में वो लोग जी रहे हैं, राइट। और नॉट ओनली दैट, मुझे ये कहा गया कि अगर बिना ग्लव्स के उस हाइट पे उस कंडीशन में आपने किसी मेटल को टच कर दिया तो आपका हाथ जो है ना, हाथ ये परमानेंटली खत्म हो सकता है, आपका हाथ काटना पड़ सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, यहां तक बात की गई है कि 1 महीने के बाद कई सोल्जर्स ने ये कहा है कि हमारे दिमाग फ्रीज हो जाते हैं, यू नो, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कोई आमिर खान की मूवी नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, राइट, ये एक्चुअल मेमोरी लॉस है फ्रेंड्स। वो एक बार नहीं लाइफ में, एवरी ईयर इन देयर लाइफ दे हैव टू फेस दिस सिचुएशंस। सर वो उफ तक नहीं करते, राइट। वो इतने मजे से वहां पे बैठे हुए सियाचिन में हमारे लिए, और हम एक बार 30-40 दिन घर में बैठे हैं जैसे पूरी दुनिया पे उपकार कर डाला हो। हमने ऐसा हैवोक क्रिएट कर दिया है कि जैसे पूरी दुनिया पे हम उपकार कर रहे हो। फ्रेंड्स कोई इश्यू नहीं है, लॉकडाउन इज अ परफेक्टली गुड टाइम, इट्स अ परफेक्टली गुड टाइम टू डेवलप योरसेल्फ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पिछले 5 साल से, फॉर द लास्ट 5 years आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाऊंगा, राइट। 5-6 साल पहले आई इंस्ट्रक्टेड माय स्टाफ कि यार एक काम करना यार, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना देना। आजकल मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सुना है। अब उसने इंस्टाग्राम अकाउंट 5-6 साल पहले बना दिया था। फिर कभी मैं सोचता था आई विल गो एंड लुक एट इट, व्हाट इज इंस्टाग्राम। फिर ये हुआ कि चलो देख लूंगा। पिछले 5-6 साल में मैंने कभी इंस्टाग्राम खोल के नहीं देखा, राइट। उसी तरह से मैं सोचता था कभी ये वेबिनार्स और इन सब के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानूंगा, बट आप समझ सकते हैं कभी नहीं किया। अब लॉकडाउन आ गया तो एक एक करके कई ब्रांचेस ने बोला कि सर लॉकडाउन के वक्त वी वुड लाइक यू टू बी स्पीकर। मैं बोला बॉस मुझे तो टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है, मैंने तो कभी वेबिनार लिया ही नहीं है। तो पहले मैंने कई ब्रांचेस को रिफ्यूज किया, पहले 8 से 10 ब्रांचेस को मैंने रिफ्यूज किया। देन वन ब्रांच से सर हम सब कुछ कर देंगे, आप बस हाँ बोलो। मैं बोला यार मजा नहीं आएगा। उन्होंने बोला सर मजा आए कि नहीं आए आप करिए एक बार हमारे साथ। एंड देन उन्होंने मुझे जूम की लिंक भेजी। चलो टूटा फूटा जैसा भी है वैसा एक वेबिनार हो गया अपना। जूम पे थोड़ा काम किया, फिर कुछ ब्रांचेस ने मुझे जोहो की लिंक भेजी, जोहो पे काम किया। देन किसी ने मुझे ब्लू जींस की लिंक भेजी, ब्लू जींस पे काम किया। किसी ने मुझे ऑन गो टू की लिंक भेजी, उसके ऊपर मैंने लिंक पे काम किया। और ऐसे करते मुझे नई नई टेक्नोलॉजी पता चली। पिछले एक महीने में आई हैव डन मोर देन 100 programs across the country on minimum 15 platforms, Facebook Live, Instagram Live, on go to, Blue Jeans, Zoho, राइट, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं करने वाला हूं। तो इज इट नॉट अ न्यू डॉन? जो मैं 5 साल में नहीं कर पाया वो इस बार किया। यू नो लास्ट वीक या 10 days बैक जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम यूज किया, आई आस्क्ड माय डॉटर
कि यार एक बात बताइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फर्क क्या होता है, करते क्या है इंस्टाग्राम? तो पहली बार मैंने इंस्टाग्राम यूज किया। सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड, ये एक डॉन है जो चीज कभी नहीं कर पाया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सेकंड एग्जांपल। मैं पिछले 5 साल से सोच रहा हूं कि आई मस्ट स्पेयर सम टाइम एंड आई मस्ट ज्वाइन द सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंड एएस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं सोच रहा हूं, लेकिन हर वक्त सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च होता है, आई हैव सम और द अदर वर्क। इंस्टीट्यूट की या तो ये मीटिंग है, या तो ये प्रोग्राम है, या तो ये, मैं कर नहीं पा रहा था। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई ज्वाइंड दिस इंड एएस कोर्स, और अच्छी तरह से मेरा वो कोर्स जा रहा है। तो इज इट नॉट अ डॉन? जो 5 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो चुका। सिमिलरली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, व्हाई डोंट वी गो विद वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स? तो इंस्टीट्यूट ने एक और सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया वेल्थ मैनेजमेंट में। इवन आई जॉइन दैट थिंग। जो मैं 5 साल से सोच रहा था वो मैंने कर दिया। इज इट नॉट अ डॉन? सिमिलरली मुझे आज भी इंटरेस्ट है FAFD, फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। पहले मैं नहीं जा पा रहा था फिजिकली। अगर मेरे ये दोनों कोर्स स्मूथली कवर हो गए तो मैं तीसरा कोर्स भी FAFD ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा। इज इट नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग? मैं वापस कह रहा हूं, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ना तो मैं इंड एएस करने वाला था कोर्स, ना तो मैं FAFD करने वाला था, और ना तो मैं ये वेल्थ मैनेजमेंट का करने वाला था। मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाता। I would always say that I'll start from next month. I'll start from next month. I'll start from next year. I would keep on befooling myself on the pretext that I don't have the time. But because of this time availability in this 1 month, look at it. I can handle 3 certificate courses. I can handle more than 100 webinars, number of activities of the institute, number of projects which are stuck up. We are taking care of these things. So this is the new dawn. This is a wonderful opportunity that we have got. आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और ब्यूटीफुल बात बता रहा हूं। समझिए, मैंने बात तो कृष्ण की भी की कि वो लॉकडाउन में पैदा हुए थे, बात तो मैंने कृष्ण की भी की। अब मैं आपको एक कंटेम्पररी एग्जांपल देता हूं। आप और मैं रेगुलर कंप्यूटर पे यूज करते हैं विंडोज, और विंडोज की बात करते हैं तो तुरंत नाम आता है बिल गेट्स। फ्रेंड्स, डू यू नो, फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट। Somebody told me, some professional consultant, management consultant told me that Bill Gates has a habit of going into quarantine, self-quarantine for 2 to 3 weeks every year. Every year he goes for 2 to 3 weeks quarantine. That is some 14 to 20 days. He goes into self-quarantine where he does not take his internet with him, where he does not take his mobile with him. He does not talk to any person, right? Except some few employees who are there to serve him. He goes to a very remote place. He does not even talk with the employees. He is silent. He is only with himself. And he says that these are the days, 20 days where I go into self-quarantine. I think about it, what I want to achieve in my coming years, personally in my life, what I want to achieve in terms of my company, where I want to look at my company in the coming decade, what I want to develop in terms of products, what are the new products in the market, and what I should do in the coming years. You know, what should be my strategy in terms of my professional life, in terms of my personal life, what are my strengths which I require consolidating, what are some weaknesses which I require overcoming. He takes a break, self-quarantine, and he says that if this self-quarantine would not have been there, I would have been stuck up, I would not have taken up the further heights. So friends, I think quarantine time, this lockdown period is a wonderful time. बॉस अगर बिल गेट्स कर सकता है, बिल गेट्स कर सकता है लेवल तक पहुंचने के लिए, तो आपको और मुझे तो और बहुत कुछ आगे बढ़ना है। और अगर आगे बढ़ना है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। इस क्वारंटाइन पीरियड को, इस लॉकडाउन को मैं एंजॉय करना है और उसमें से कुछ सीखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको एक और ब्यूटीफुल बात बताता हूँ। फ्रेंड्स, मान लो आप अपने 4 फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप हैं और आपके दूसरे 4 फ्रेंड्स हैं, और वो चारों बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही पकाऊ बात करते हैं। हाउ डू यू फील? आप कहेंगे यार मेरी तो कंपनी फालतू है, बोर कर डाला इन्होंने, आज का दिन खराब गया। ठीक है भाई, जस्टिफाइड है कि आप बोरिंग कंपनी में थे, आपके 4 बोरिंग फ्रेंड थे। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप किसके साथ हैं? अब आप लॉकडाउन में किसके साथ हैं? खुद के साथ, अपने आप के साथ। जब आप अपने आप के साथ हैं और आप कहें मैं बोर हो चुका हूं, तो मुझे बताइए बोरिंग कौन है? आप किसकी कंपनी में? आप अपनी खुद की कंपनी में है, इसका मतलब बोर्डम आपके अंदर है। और फ्रेंड्स, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई लोग तो लॉकडाउन में ऐसे बोल रहे हैं कि कब काम पे जाऊंगा, जैसे उनको काम करने का इतना मजा आता था, सुबह सुबह खुशी के मारे ऑफिस भागते थे, कंपनी भागते थे। अरे भाई साहब,
एक बात समझे, unfortunately during this lockdown there is only one shift that you have made, that is from the companies to home. What actually we require is an attitude shift. Friends, जो लोग कंपनी में, शॉप पे, ऑफिस में खुशी से जाते थे, घर पे भी वो खुशी से बैठे, और जिनको कंप्लेंट्स थी कंपनीज में, वो घर पे भी कंप्लेंट। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आप लॉकडाउन के वक्त बोर हो रहे हैं तो आप खुद एक बोरिंग पर्सन है। अगर लॉकडाउन के वक्त आपको डिप्रेशन हो रहा है तो सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन नहीं है, आपके अंदर डिप्रेशन है। अगर लॉकडाउन के आप एक बहुत खुश हैं तो इसका मतलब खुशी आपके अंदर है। सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड, आप और मैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें लॉकडाउन का उपयोग करना है, हमें अपने डोमेन एक्सपर्टीज बढ़ानी है, राइट? अगर IFRS आपका टॉपिक है तो IFRS को सुधारिए, अगर आपका इनकम टैक्स टॉपिक है तो इनकम टैक्स में इंप्रूव करिए, अगर आपका GST टॉपिक है तो GST को इंप्रूव करिए, और साथ साथ में हमारा जो माइंडसेट है उसको हम ग्रूम करेंगे, हम अपने आप को ग्रूम करेंगे, विल मेक अवर बेटर पर्सनालिटी। सो फ्रेंड्स, ये बात हमने बिल गेट्स की, और बात अगर कृष्ण की करें तो दूसरे व्यक्ति की क्यों ना करें जो भी क्वारंटाइन में गए थे। हमारे दूसरे जो भाई साहब थे कृष्ण की जगह पे, तो सेकंड वन, आजकल दूर ये बिकॉज ऑफ द सीरियल्स, उनकी भी सीरियल आ गई, वो भी तो राजा बनने की तैयारी में थे। ही वॉज गोइंग टू बी कॉरोनेटेड एज द किंग ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ इंडिया, एंड जस्ट बिफोर दैट he came to know that he is not supposed to be the king. His brother Bharat will become the king because of the insistence of his mother Kaikeyi, and he is required to be into quarantine for 14 years. भाई राम को भी तो वनवास हुआ था, 14 साल का हुआ था ना, मतलब क्वारंटाइन पीरियड तो उनका भी था। आपको क्या लगता है, राम जब अपना राज्य अयोध्या छोड़ के गए होंगे तो गाली बकते बकते गए होंगे क्या? फ्रस्ट्रेट होके गए होंगे क्या? डिप्रेशन में होके गए होंगे क्या? बोर होके गए होंगे क्या कि यार नहीं यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, में तो राजा बनने वाला था और अब सिचुएशन ये आ गई कि 14 साल का क्वारंटाइन लग गया? जी नहीं, राम बहुत ही स्वस्थ मन से गए थे कि अगर मैं राजा बन के खुश रह सकता हूं तो वनवासी रह के भी खुश रह सकता हूं, अगर मैं राजमहल में खुश हो सकता हूं तो वन में भी खुश हो सकता हूं, अगर मैं पीस पे खुश हो सकता हूं तो वॉर में भी खुश हो सकता हूं। और जो उनका मन के ऊपर नियंत्रण था ना, बराबर समझना, किसी भी सिचुएशन में मन एकदम, राम वॉज एक्चुअली अ कूल मैन। आज की बात करें ना तो ही वॉज अ कूल मैन, सिचुएशन कैसी भी आए ही वॉज ऑलवेज वेरी एट ईज। एंड इसीलिए हम उनके प्रे करते हैं, हम इसलिए प्रे करते हैं कि उनकी ये क्वालिटी हम में आए, उनकी ये क्वालिटी हम में आए कि राजा बनाओ तो भी मैं खुश हूं और वनवास दो तो भी मैं खुश हूं। आप मुझे कोई भी सिचुएशन दो, मैं उसको एकदम पीसफुली हैंडल कर सकता हूं। और ये अगर 14 साल का क्वारंटाइन पीरियड नहीं होता, 14 साल के क्वारंटाइन पीरियड के पहले वो राम थे, और 14 साल के क्वारंटाइन पीरियड के बाद वो श्री राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। तो हमने कृष्ण से शुरू किया और आ गए राम तक। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अब हुआ यूं कि दो चार लोग क्वारंटाइन पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने बुलाया, ए कहाँ के हो तुम? तो एक आध बहुत मूड में आ गया, हम वहां के हैं जहां राम पैदा हुए थे। मूड में बोल दिया, बोले अवध का हूं इस तरह से, हम वहां के हैं जहां राम पैदा हुए थे। और पुलिस ने भी 2 डंडे लगाए, चल हमारे साथ। बोले कहा? वहां जहां कृष्ण पैदा हुए थे, अरे बेटा कारावास में। तो खैर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑन लाइटर नोट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स ये देखें कि हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज अवर टाइम। दिस लॉकडाउन पीरियड इज वंडरफुल, हाउ डू यू यूटिलाइज योर टाइम? फर्स्ट थिंग मैंने ये देखा, I observed one thing that if I improve upon my vocabulary, I can be a better speaker. So I decided one thing, that in this one particular month, I'll find out some 500 new words in English. I'll find out some 500 new words in English, which I'll be using it in my regular, conversation with people, interaction with people. This will enrich me in terms of language. So one thing is, you can improve upon your vocabulary. We all are professionals, and professional people are required to be excellent in terms of drafting. Professional people are people in public, and many times we are required to give public speeches. For that,
not only the fluency of your speech, but also your vocabulary matters. So can we do one thing? Can we decide upon it that during this lockdown period, we are going to improve upon our vocabulary? That is one. Two, sharpening our skills in domain expertise. As I told you, I wanted to do the Ind AS course, but I was not doing it. But with this lockdown, I got the benefit and I'm going through the Ind AS course as well as the wealth management course. So second is domain expertise. Find out what is that something you want to learn and put in the efforts for that. Number three, improving yourself in terms of technology. Friends, I think there are many people on this particular, in this program, and many of you would be of my age, right? My daughter is in the CA final, right? Now, what 25 years back I was, today I'm not like that. So many new technologies I might not be learning in my regular life, day-to-day life. Now this lockdown makes it imperative for me to learn these technologies. So third thing is invest your time in terms of technology. Think about it. What are the various things in terms of technology, whether it is by way of PowerPoint for the purpose of presentation, or in terms of Excel, in terms of some requirements, or is it in terms of tele, or is it in terms of network or networking, or whatever, even you can go to the extent of becoming a programmer, right? You might learn some programming language also during this period. So that is the third thing in terms of technology. Fourth is in terms of reading. Like this month, I am reading books on IFRS, also domain expertise, and I am reading books on literature also. So maybe you might decide that those of you who are in a habit of regular reading of literature, I think it's a wonderful time for you to read, right? But if you have not started with, then start with identify one or two beautiful books on literature. Literature is full of beautiful books. You may choose Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach, or I Am Another You by Priya Kumar, or Our Iceberg is Melting by John Kotler, or you may take up any book of your choice, any book, maybe Robert Kiyosaki, or maybe Robin Sharma, or maybe James Redfield, or maybe any author, Paulo Coelho. Select some one or two beautiful books, those books which touch our life, which touches our attitude, right? Which changes our mindset. Pick up one or two beautiful books and read these books. And this can be the starting point for reading the books. And maybe you keep on continuing with these books. Similarly, you might read out, as I said, I am reading out IFRS and finance because these are my core fields. My core fields are finance. So I am reading some books on finance. I'm reading some books on Ind AS and IFRS. So invest your time. Let us understand, friends, during this lockdown, we are investing into ourselves, the most important people. For me, I am the most important person. For you, you are the most important person. Invest into yourself. Read some beautiful books in terms of life, in terms of profession. This is a great opportunity. If you're not started, this is the time to start. So one is in terms of, knowledge. Next is, now friends, very important, I'm telling you. Unfortunately, I have seen many professionals who are not very careful or vigilant about their health. Friends, मैं आपको बता दूं, मैं regular days में at least 90 minutes exercise करता हूँ daily without any break. Regular day में under any kind of circumstances, I work out at least for 1.5 hours. That is 90 to 100 minutes. I exercise, right? But during this lockdown period, because I have some good time with me, जब से lockdown शुरू हुआ है, I have been exercising 3 hours a day. Friends, मैं भी तो 50 के पास पहुंच रहा हूँ. I am also reaching towards the age of 50, and at the age of 50, I don't want to grow old. I have to run marathon. मैं हर साल मैराथन रन करता हूँ और 50 पे भी मैराथन रन करूंगा, एंड 50 पे भी वैसा ही रहना चाहता हूँ जैसे एक 25 साल का कॉलेज वाला रहता है. और अगर मुझे ये करना है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा. और आई थिंक जो आप में से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का अपना कोटा थोड़ा बढ़ा दीजिए, और जो नहीं कर रहे भाई साहब इनकम टैक्स जीएसटी तो बाद में काम आएगा. हेल्थ ही नहीं होगी ना तो ना इनकम टैक्स आएगा ना जीएसटी साथ आएगा. सो आप शुरू करिए, आप अपनी हेल्थ पे शुरू करिए, हो सके तो लाइटर एक्सरसाइज से शुरू करिए. सो मैं अभी 3 घंटे रोज वर्कआउट करता हूँ, 1 घंटा रोज वॉक करता हूँ मेरी टेरेस पे,
1 घंटा रोज एक्सरसाइज करता हूं, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, चाहे जो भी हो, और 1 घंटा रेगुलरली योगा करता हूं, जिसमें मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि क्यों ना हम शुरू करें। अच्छा, आप में से अगर कोई योगा नहीं कर रहा है, प्राणायाम नहीं कर रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल और कंपेलिंग रीजंस बताता हूं। मैं शुरू करूंगा प्राणायाम से। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्राणायाम्स है। मैं 3 की बात कर रहा हूं, 3 की बात। एक है अनुलोम विनुलोम, एक है भस्त्रिका, और एक है कपालभाति। अगर आप ये प्राणायाम रोज सर 10 मिनट देनी है, सिर्फ आपको 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, अगर आप ये रोज करते हो ना, तो आपको मैं बता दूं 95% आपका रिडक्शन हो जाता है चांस। अगर किसी के चांस 100 है 100, तो आपका चांस 5 हो जाएगा कोई भी डिजीज को कैच करने का। मतलब माइग्रेन, कफ, कोल्ड एंड इवन कोरोना, राइट? मैं वापस कह रहा हूं, माइग्रेन, कफ, कोल्ड, कोरोना, ये सब के आप अगर 100 चांसेस है आपके कैच करने के, तो 5 पे आ जाएंगे। 95% रिडक्शन हो जाता है अगर आप ये कर रहे हैं। तो क्या प्राणायाम करने का ये एक बहुत ही अच्छा रीजन नहीं है? जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कोरोना कैच करने का उनका चांस दूसरों से कम है, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। कैच भी करेंगे तो फाइट बैक करने का उनका चांस ज्यादा है। सो दैट इज 1। 2, मेडिटेशन। फ्रेंड्स, मेडिटेशन, कई लोग, अगर यहाँ पे यंग लोग बैठे हैं तो यंग लोग सुन लो, आपके दिमाग में ऐसा है कि मेडिटेशन ओल्ड लोगों की बात है। जी नहीं, मेडिटेशन ये यंग लोगों की बात है। मेडिटेशन यंग लोगों की बात है। अच्छा, किसी ने मुझे प्राणायाम पे रिपीट करने को कहा, मैं सिर्फ आपको तीनों के नाम बता देता हूं। अनुलोम विनुलोम, दैट इज 1 थिंग। सेकंड इज भस्त्रिका एंड थर्ड इज कपालभाति। ये तो आप किसी भी यूट्यूब में प्राणायाम डालोगे ना, आपको मिल जाएगा। ये तो इंडिया की एंशिएंट टेक्निक है, ये रिलीजन की बात नहीं है। दिस इज वंडरफुल, ये हमारी बॉडी की बात है प्राणायाम। और योगा की मैं बात कर रहा हूं पहले आपसे, तो योगा जो है ना सर, कई लोगों को लगता है योगा मतलब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करना। इंग्लिश पीपल डू योगा दैट वे, बट योगा इज अबाउट योर माइंड, योर बॉडी, हर चीज को हार्मोनाइज करना। फ्रेंड्स, मैं योगा आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। थिंक अबाउट एन ऑर्केस्ट्रा वेयर यू हैव अ ब्यूटीफुल गिटारिस्ट, वंडरफul guitarist, you have a wonderful drummer, you have a very good keyboard player, and you have a very good singer. But if there is no harmony, there is no symphony, there is no harmony, there is no symphony, what will happen to the orchestra? क्या बेसुरा ऑर्केस्ट्रा होगा। बट अगर आप उसी में हार्मोनी लाए, उसी में एक सिंफनी लेके आए, आप अगर उसको कोऑर्डिनेट करें, हार्मोनाइज करें, तो क्या ब्यूटीफुल म्यूजिक दे सकता है। योगा का काम ये है, वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, आपके माइंड, राइट, आपकी कॉन्शियसनेस और ये कॉस्मो की जो एनर्जी है, इन सबके अंदर तालमेल लाता है, हार्मनी, सिंफनी। अरे आप कोशिश तो करके देखिए योगा में, 10 मिनट ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, आप 10-15 मिनट ट्राई करोगे ना, आपको आपकी बॉडी के बारे में कई ऐसी चीज पता चलेगी जो अदरवाइज पता ही नहीं चलेगी। कि पूरे दिन बैठे रहने से आपको क्या प्रॉब्लम है पीठ में या जॉइंट्स पे, जब आप योगा करोगे तब पता चलेगा आपको कि यहाँ प्रॉब्लम है, राइट, और आप उसको सुधार सकोगे। सिमिलरली मैं मेडिटेशन के बारे में बोल रहा था, 10 मिनट करके देखो। यंगस्टर्स, आप ये मत सोचो कि ओल्ड एज के लोगों के लिए, ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, मैं कोई रिलीजियस बात ही नहीं कर रहा हूं। मेडिटेशन जो है, पहले आपको बोरिंग लगेगा, पहले आपको लगेगा यार क्या पकाओ काम है, बट जब आप उसको कंटिन्यूस करोगे ना, सिर्फ 10 मिनट से ट्राई करो, थोड़े दिन करोगे ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके मन में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, जब आपके कंप्यूटर में कुछ जरूरत से ज्यादा डेटा चला जाता है, राइट, और एक ऐसा आता है, तो आप उसको बैकअप करके फॉर्मेट करते हो कि नहीं करते हो? फॉर्मेट करने से उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? मेडिटेशन आपके दिमाग को फॉर्मेट करता है, जितनी चीजें जरूरी नहीं है वो उसको हटा देता है, जो नेगेटिव फीलिंग है वो उसको हटा देता है और आपको पॉजिटिव बनाता है, आपका फोकस बढ़ता है। फ्रेंड्स, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो खास कह रहा हूं, जो चीज लोगों को 10 घंटा लगेगा पढ़ने में, आप शायद 2 घंटे 4 घंटे में वो कर पाएंगे, इफ यू आर रेगुलर इन मेडिटेशन। बिकॉज आपका जो फोकस होगा ना, वो रेजर शार्प होगा, आप अर्जुन जैसे होंगे, इनका फोकस ये है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉकडाउन को कैसे यूज करें, दैट इज अ न्यू डॉन। तो जैसे मैंने आपको कहा, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अपने आप को नॉलेजेबल बनाए, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो भी आपको पसंद है उसका नॉलेज ले, नई बुक्स पढ़े, चाहे वो एल्केमी और पॉलो कोएल्हो की, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की, वो पढ़े।
हेल्थ के ऊपर फोकस करे, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन पे फोकस करे, अपनी हॉबीज पे फोकस करे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप यंग स्टूडेंट हो तो मैं स्टूडेंट को बता रहा हूं, मैं कई बार कहता हूं कि मुझे सीए का स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो बहुत खुशी से इनकम टैक्स पढ़ता हो और जो बहुत खुशी से गिटार बजाता हो। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी एक्सीलेंट इन इनकम टैक्स ऑल्सो और इन गिटार ऑल्सो। मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा सीए स्टूडेंट चाहिए जो बहुत ही बेहतरीन तरह से अकाउंट्स जानता हो और जो अच्छी तरह से डांस पार्टी में डांस भी कर सकता हो। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड, वी डोंट बी वन साइडेड इन लाइफ। हमें ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो जीएसटी में भी एक्सीलेंट हो और क्रिकेट में भी एक्सीलेंट हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है हॉबीज, यहाँ पे बात आती है हॉबीज। हर इंसान की जो पहचान है वो उसकी हॉबी से होती है। हॉबीज टू मैन व्हाट फ्रेग्रेंस इज टू अ फ्लावर। और आप समझिए, हम जितने प्रोफेशनल से वो लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं, अगर आप हॉबीज डेवलप करोगे तो राइट ब्रेन डेवलप होगा, और लेफ्ट प्लस राइट जब आपका बैलेंस होगा ना, तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे। यू विल बिकम अ मोर ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ मोर एक्सीलेंट प्रोफेशनल। राइट, तो हॉबीज, जैसे मेरी हॉबीज सिंगिंग है, मेरी हॉबी ड्रम बजाना है, पियानो बजाना है। राइट, अब मेरे घर पे अभी ड्रम है नहीं, पियानो पड़ा हुआ है। जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है, मैं रेगुलरली पियानो बजा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा तो बेचारा पियानो पड़ा हुआ था, मुझे कई दिनों से वो आवाज दे रहा था, वह मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पर मुझे लग रहा है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास इतना टाइम अभी बाकी के काम है, मैं पियानो बजा ही नहीं रहा था। पिछले कुछ दिनों से वापस पियानो बजा रहा हूँ, वापस मजा आ रहा है। तो इन्वेस्ट इनटू हॉबीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझे हम, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझे हम। फ्रेंड्स, आप अपना मोबाइल चेक करना, ये सेशन खत्म होने के बाद मोबाइल चेक करना। ये डिजिटल होने की वजह से जहां पे 5 फोटो की जरूरत है, आपने 50 फोटो लेके रखे होंगे, जिसमें से 45 फोटो आपको पसंद भी नहीं है। और कितने फालतू मैसेज पड़े होंगे, कितने फालतू फोटोज पड़े होंगे, कितने फालतू वीडियोस पड़े होंगे, मोबाइल में दुनिया भर का कचरा पड़ा होगा। तो एक काम करो, उसको क्लीन कर दो, जो काम का नहीं उसको डिलीट कर दो। अगर व्हाट्सएप नहीं पढ़ने तो एक साथ सिलेक्ट और करके डिलीट कर दो। मैं डेली नाइट को व्हाट्सएप में क्लीन ऑल कर डालता हूँ। मुझे जो इंडिविजुअल मैसेज पढ़ने पढ़ लेता हूँ, बाकी सब क्लीन ऑल कर डालता हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग इन माय लाइफ व्हिच इज एक्स्ट्रा अननेसेसरी डिस्टर्बिंग मी। अगर आपके घर पे आपका कबर्ड, आपका घर, ऑफ कोर्स ऑफिस भी, लेकिन ऑफिस में भी आप जान ही रहे हैं, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो इसका मतलब आपका मन भी अनऑर्गेनाइज्ड है। घर को क्लीन करने का अच्छा मौका है, आपके ड्रॉवर को क्लीन करने का अच्छा मौका है। कपड़े ठीक से रख दीजिए, अपना खुद का काम खुद करके देखिए, मजा आएगा, मजा आएगा। कोशिश करके देखिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो वंडरफुल है, नहीं कर रहे हैं करके देखिए, थोड़ा सा घर की साफ सफाई करके देखिए, मजा आएगा। आपके लैपटॉप में कई ऐसी फालतू फाइल पड़ी होंगी जिनको आपकी कोई जरूरत नहीं है, और आपकी काम की फाइल आपको रेगुलर ऑफिस के टाइम पे ढूंढने में टाइम लगता होगा। तो ये टाइम है, चेक करिए एक एक करके फोल्डर्स, जो फाइल काम की नहीं उसको डिलीट कर दीजिए, जो फाइल जिस फोल्डर में होनी चाहिए उसमें रखिए। इससे बेनिफिट ये होगा, जब आप ऑफिस खोल के बैठेंगे उस टाइम पे आपका टाइम बिगड़ेगा नहीं। मतलब इसको यूं कहते हैं कि, सिंपल हिंदी में कहता हूं कि जब मछुआरे नहीं जा सकते दरिया में मच्छी पकड़ने के लिए, तब वो नेट बनाते, राइट। उसी तरह से हम जब ऑफिस में जाना शुरू करेंगे, फॉर्चुनेटली आप और मैं जिस प्रोफेशन में है ना, उसमें तो अपनी ऑफिस घर से भी चल सकती है, एटलीस्ट 70% एफिशिएंसी पे चल सकती है, तो चलो ठीक है। बट फिर भी हम जब फिजिकली ऑफिस जाएंगे तो उस टाइम पे कैसे अपना टाइम बचे, कुछ बैकग्राउंड अभी से काम कर लेते हैं, राइट। डीक्लटर योर लाइफ, योर माइंड, योर लैपटॉप, योर मोबाइल, योर हाउस, ऑल दिस थिंग्स। आप यकीन मानिए, यू विल एंजॉय दैट। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज जो लोग यहाँ पे है ना मेरे साथ, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है। मैं तो इनकम टैक्स उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, मैं तो जीएसटी उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, राइट। यू आर मच मोर नॉलेजेबल देन मी। मैंने तो 10 साल पहले जीएसटी तो मैंने बहुत लाइटली पढ़ा, डिटेल में जाता नहीं हूँ। इनकम टैक्स 10 साल पहले पढ़ना छोड़ दिया, बराबर। मैं तो अकाउंट्स और फिनेंस वाला हूँ, आपके जितना नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैं इतना ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो मैं आपको कुछ कह सकूं। बट मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि मन में एक भी बार नेगेटिविटी मत लाइए। एक बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, जो बाहर ऑफिस में भी खुश और घर पे भी खुश, वही सही आदमी है। लॉकडाउन में हो चाहे बाहर हो, अपना मन हमेशा स्वस्थ हो, तो हम कह सकते हैं कि हम सही लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो प्रोफेशनल बनने का क्या फायदा। मैं तो सिर्फ छोटा सा इंटरेक्शन आपके साथ करना चाहता था,
लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद कोई क्वेश्चंस है तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स कि वो मुझे अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ पे यूट्यूब पे या कहाँ पे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट हम, अगर वो मुझे क्वेश्चंस पूछ ले, जितने आपकी मर्जी आप मुझे पूछ सकते हैं आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मैं लास्ट आपको एक चीज कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये टाइम है विजन क्रिएट करने का। रोज रोज की जिंदगी में आप में से ज्यादातर लोग मुंबई के हैं, रोज रोज की जिंदगी में आप में से ज्यादातर लोग मुंबई से हैं, और लटकती ट्रेन में शायद आपको मौका ही नहीं मिलता अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। तो सोचिए, आने वाले 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में, आने वाले 3 महीने में, आने वाले 1 साल में, आने वाले 5 साल में आप जिंदगी में क्या चाहते हैं पर्सनली, आप क्या चाहते हैं हेल्थ के टर्म्स में, आपके क्या टारगेट है, फिनेंशियल टारगेट्स क्या है आपके, फिनेंशियल आप कौन से टारगेट रख के बैठे, अपने नॉलेज के टर्म्स एडिशन में क्या टारगेट है। फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल टाइम, friends, this is a wonderful time for you. I'm telling you to develop a vision, a short term vision for 1 month, 3 months, 6 months, a medium term vision for 1 year, 5 years, and even a long term vision. Number 1, what you want to be in your life, what is important in your life. Number 2, in terms of your profession, how you are going to develop your professional, how you are going to develop on terms of profession. Number 3, what are going to be the domain expertise things. Number 4, in terms of technology, what you are going to do. You know, this is the time. Write down your short-term goals, long-term vision. I am sure if you do that and if you can keep on working on that, you'll enjoy. मैंने शुरू किया ये सेशन बहुत ही लाइट वेन में कृष्ण से, मैं कृष्ण से लेके राम तक पहुंचा, बिल गेट्स तक पहुंचा, फिर मैंने हमने छोटी छोटी बातें की कि हम अपना समय का सदुपयोग कैसे करें। We started with it कि आप हॉबीज पे फोकस करिए 1, आप हेल्थ पे फोकस करिए 2, आप टेक्नोलॉजी को सीखिए 3, आप रीडिंग करिए अपने डोमेन एक्सपर्टीज को 4, आप रीडिंग करिए लिटरेचर की बुक्स 5, और आप डीक्लटर करिए अपनी लाइफ को, क्लीन करिए अपने लैपटॉप को, क्लीन करिए अपने मोबाइल को। इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। कई चीजें आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। दिस इज द टाइम टू डू इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने विजन को, क्योंकि किसी ने कहा है, इफ द कैप्टन ऑफ द शिप if the captain of the ship does not know to which port he is steering, no wind is favorable to him. So this is the time to develop the vision. Friends, this is what I wanted to share with you. Whatever questions you pose, I'll be happy to dwell on that. Admin sir, Admin sir, you can look into it if there are any questions, because I would not be in a position to see that. Even on YouTube, there might be some questions. I would thank each and every person for your compliments. Whoever given me compliments, thank you very much for all of that. Can you please give details about FAFD? Somebody has asked me about the FAFD course. FAFD course is the course on forensic audit and fraud detection. It's a very interesting course. Forensic audit is going to be the future of the audit profession, and that's why if somebody would like to learn it, it's a wonderful course. It will give you the beginning of the forensic audit, and then you can further develop it. Yeah, thank you, Jay bhai. Thank you for the beautiful deliberations. I now request Sir, actually, I am not in a position to look at any questions because I have entered through my laptop. Mobile. Okay, I'll try to go into chat and check it out. Kamlesh bhai, please check in the chat. Kamlesh ji. I could find out one question. How long you took for taking these degrees? Friends, very honestly, this is just a myth that, you know, हमारे पास टाइम नहीं है या हम टाइम कम पड़ रहा है ऐसा. I, along with my CA,
I did my CMA, CS, LLB, MBA, MCOM, MFM, and some 8 courses. Along with my CA, I did my 8 courses. Once my 8 courses was over, I did other 8 courses. And once my these 8 courses are over, I did still other 8 courses, and I kept on going through that. But then once I joined my central council, I had a temporary break. After central council, I once again start studying what I want to. The only point why I'm discussing with you is many people are talking about it that time नहीं मिलता, but मुझे लगता है time नहीं है, ये तो एक मतलब शायद time नहीं है इसका मतलब we are not very good managers of time. हमें time management improve करना पड़ेगा और mindset develop करना पड़ेगा. और कोई क्वेश्चन मुझे अभी एक्चुअली दिख नहीं रहा है. राकेश जी आप हो यहाँ पे लाइन पे? हाँ सर मैं हूँ सर. हाँ तो जरा फॉरवर्ड लीजिए. राकेश अगर कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहे हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू. एक ने पूछा था कि समराइज में बता दो पॉइंट, मतलब जो भी आपने एक्सप्लेन किया है तो समराइज. नहीं, समराइज मैंने कर लिया था, लेकिन वापस समराइज कर दूं कि लॉकडाउन इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर इंप्रूविंग अपॉन योर डोमेन एक्सपर्टीज 1, इंप्रूविंग योर हेल्थ नंबर 2, इंप्रूविंग in terms of your hobbies number 3, focusing upon your profession, how you can develop it number 4, reading some wonderful books on literature number 5, right? Decluttering your life, cleaning your home, your laptop, your mobile number 6, and such type of things. The most important, developing your vision. Spend some time daily with yourself, developing your vision, what life you want, what type of life you want, and how you are going to achieve. I think this is a summary of it. सर इसके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी ने और क्वेश्चंस पूछे हैं. एवरीबॉडी इज गिविंग यू थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल मोटिवेशनल स्पीच. I must be thankful to all the organizers, particularly राकेश जी से और कमलेश जी से, जिन्होंने पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दी, and all the organizations and all my dear friends for being with me during this session, giving wonderful compliments, right? राकेश जी अगर कोई क्वेश्चन है तो it is perfectly fine. अदरवाइज आप जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन अबाउट माय कांटेक्ट, तो मैं अपना कांटेक्ट डिटेल दे देता हूं. किसी ने पूछा है तो मेरा कांटेक्ट डिटेल, माय कांटेक्ट डिटेल इज 98251. मैं रिपीट करता हूं 98251 96241. पिछले 5 डिजिट वापस बताता हूं 96241. आप में से कोई मुझे कभी भी कांटेक्ट करना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंटरव्यू कीजिए. थैंक यू जय सर. सर वोट ऑफ थैंक्स. नाउ आई रिक्वेस्ट कमलेश भाई जरा वोट ऑफ थैंक्स दीजिए. Yeah, I'm really thankful to Jay bhai. From Krishna and Ram, Nelson Mandela to Bill Gates, it was a really fruitful session for all of us. To Jay Chera for devoting his valuable time. Big round of applause for him. Thank you so much, Jay bhai. Friends, thank you all for joining, and I am really thankful to Jay bhai for joining us when Rakesh told me कि विजय भाई ऐसा एक प्रोग्राम करना है. बोला भाई तो जब मेरे को राकेश ने बोला कि विजय भाई ऐसा एक प्रोग्राम करना है तो बोला जरूर. तो आई सेड नो श्योर वेलकम और जरूर करेंगे ऐसा प्रोग्राम. ऐसा इट्स द नीड ऑफ द आवर आल्सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग. जय भाई आपके वीडियो में कुछ तो भी आ रहा है बैकग्राउंड में. Thank you very much. Thank you all the participants. Friends, today we were live on YouTube, and I request all who has missed out to check the recording on the YouTube also. Thank you very much. Thank you again for joining. Our next lecture will be on Friday, Issues in ITC by Advocate Deepak Bhagwat. Thank you all. Thank you, Jason.